नमस्कार, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं जी मीडिया परिवार की तरफ से। जी मीडिया ने दुनिया के सबसे पुराने पार्लियामेंट्स में से एक ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसका नाम है जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट 2025। जी मीडिया भारत के अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों में एक अनुकूल मंच दिलाता है जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल सके और साथ में उनके कार्यों को भी सराहा जा सके। तो शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले जी भारत के एडिटर संतोष कुमार को यहाँ बुलाना चाहूँगी। आप आएँ और इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। जैसा कि पूजा ने अभी ये बताया कि ये जो कॉन्क्लेव है, ये कॉन्क्लेव कितना खास है, कितना मायने रखता है, क्योंकि भारत की छवि दुनिया के देशों में किस तरीके से बन रही है और उस छवि को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। और उसमें हमारे एमएसएमई सेक्टर के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो डाउन टू लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों की जो भूमिका है वो दुनिया तक पहुँचे। और उसके लिए जी मीडिया जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में उनको एक मंच देता है, एक अनुकूल मंच देता है, उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है जिसने अभी तक ये हम चौथे नंबर पर पहुँचे हैं, उसको तीसरे नंबर तक आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें उनकी भूमिका कैसे और अच्छी हो सकती है और बेहतर हो सकती है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं लॉर्ड रमी रेंजर को इनवाइट करूंगी, मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप इस कार्यक्रम के बारे में लोगों से दो शब्द कहें। My colleagues from Parliament, Baroness Verma, Chris Rao, and our community leader Ramesh ji, who has been in everywhere, and the editor and all these मंच पे बैठे हुए जो है dignitary, उनको प्रणाम. Now we are going to have a free trade agreement with the largest democracy, with the oldest democracy, sharing each other's values. I'm very proud that you people are from small to medium-sized businesses, because we have to start from somewhere. As somebody said, the longest journey begins with the first single step. You have taken that step. It's a very bold step, but then you need certain qualities which will make you the best among the rest. And those qualities are from, you have born with those qualities. First of all, you can tap on your back for one reason, that you're all Sanatani. You inherited Sanatani values, which values have stood the test of time. And this is no strange that today Sanatanis are running most of the blue chip companies. You can also tap on your back for the second time that you have selected a prime minister who is a visionary. There is a proverb, we all have a sight, but there are very few people have vision. Vision to go far, farther, further, further. And the Prime Minister Narendra Modi has started the revival of Sanatani civilization, which was neglected for thousands of years. Any of you are here, you have to understand you only succeed when your customers succeed. You cannot have I'm all right Jack approach, that I take advantage of my customer. They have to succeed. They have to get value so they can come back to you as successful. If you are destroying them, forget it. You will not go further. Yes? So all these little values, if you have those values placed in your business, you will be rising above the rest. Jai Hind. बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you. सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और ऐसे सक्सेस मंत्र दिए हैं जो हम सबके जीवन में आगे ज़रूर काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब मैं चाहूँगी मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स बारनेस वर्मा, आप हमारे मेहमानों से दो शब्द कहें। First of all, a very, very warm welcome to each and every one of you here. 4 years ago, I founded the All-Party Parliamentary Group
for India investment and trade. The reason for that was there was no such cross-party body that looked at the importance of trading with India and investing with Indian companies. And today, I can safely say it's one of the most active, most well-attended all-party groups in Parliament. But let me tell you one thing, that some of the biggest businesses that have grown have come from the Indian community in this country. And this country has been incredibly good for the Indian community because the Indian community works hard, is honest, pays suppliers on time, employs people, creates wealth, and generates employment. All of those things are key. So if we want to trade together, which is important, and the awardees today, congratulations in advance, because you have demonstrated the importance of that. So I will leave you all with that thought. I am an advocate for females. I know there are more men in the room today, but the next time you're here, I'm sure there'll be more female entrepreneurs. Yeah, sure. And if you're not, I will call you out. But आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूंगी लॉर्ड क्रिश रावल, मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आप आएं और हमारे मेहमानों को संबोधित करें. Well, it is a true honor to congratulate all of you. The fact that you've taken time to be here, traveling such vast distances to join us means a lot to me. And what a privilege to follow on from Lord Ranger and Baroness Verma. They are my elders in this place. I am a lord for about 8 months. And I know every time they speak, I have something to learn from them. But I want to say something to you. Firstly, I was there with Prime Minister Modi and Keir Starmer, and I spoke to Prime Minister Modi in my broken Gujarati. He said, "Which part of India are you from?" And I said, "Well, there's a part of India in my home city or home borough of Harrow, so that's where I'm from." And my Prime Minister, Keir Starmer, appreciated that, and he would want me to tell you how much he values the bilateral. The relationship with India is really one of his proudest achievements, this free trade agreement. And what we can do together is help us maintain our living standards, but also bring the living standards for all Indians, including my family in India, up. And I think these kind of interactions mean that, and you mean that. So we very much look forward to hearing some of your stories, I hope, to giving you the awards and meeting you individually, and say, as Baroness Verma said, come again. So thank you so much. तो अब अवार्ड सेरेमनी की हम शुरुआत करते हैं जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे. और इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हम करते हैं उस लॉजिस्टिक्स कंपनी से जिन्होंने इस सेक्टर में एक नई क्रांति ला दी है. उनकी दूरदृष्टि और प्रबंधन कौशल ने अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स को देश ही नहीं दुनिया के शीर्ष लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स में शामिल किया है. लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उनके अद्वितीय योगदान के लिए हम उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करते हुए गर्व अनुभव करते हैं. आगे बढ़ते हैं और अवार्ड के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगी उस शख्स को जो वर्ल्ड फेमस ताज नगरी आगरा से आते हैं. रोहित जैन रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है. सबसे ख़ास बात यह है कि वो बहुत सारी सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं आगरा के अंदर, और इसी योगदान के लिए उन्हें एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट के अवार्ड से नवाजा जाता है. भारत अपने साथ साथ दुनिया के देशों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा रहा है, और इसी कड़ी में स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को इनके योगदान के लिए इमर्जिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया के अवार्ड से नवाजा जाता है. अब हम सम्मानित करेंगे फॉर्मर जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट श्री रजनीश भटनागर जी को. श्री रजनीश भटनागर जी ने जुडिशरी ज्वाइन की साल 2000 में एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट पहुंचे साल 2019 में टिल हिज रिटायरमेंट. अपने इसी योगदान के लिए जस्टिस रजनीश भटनागर को एग्जेम्पलरी सर्विस इन लॉ एंड सोशल वर्क के अवार्ड से नवाजा जाता है. आगे बढ़ते हैं. एक फिल्म जिसने पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींची, और इसके लिए हम यहाँ पर सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे मिस्टर भरत कुमार, डायरेक्टर उदयपुर फाइल्स फिल्म को. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए. ड्रीमलैंड ग्रुप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है. रियल एस्टेट के सेक्टर में शानदार काम भी कर रहा है.
और इनके काम को ध्यान में रखते हुए ड्रीमलैंड ग्रुप को एक्सीलेंस इन क्राफ्टिंग रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अवार्ड से नवाजा जाता है। मेडिकल टूरिज्म में भी भारत दुनिया के पसंदीदा देशों में से एक है। राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का भी योगदान हेल्थ के क्षेत्र में सराहनीय है। राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को अपने इसी योगदान के लिए इनोवेटिव नेटवर्क मार्केटिंग एंड फूड सप्लीमेंट्स के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने शानदार काम के लिए आइडियल फ्लो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड को आउटस्टैंडिंग मोस्ट इनोवेटिव इंजीनियरिंग 2025 के अवार्ड से नवाजा जाता है। हेल्थ सेक्टर के ऑल्टरनेट मेडिसिन में शानदार काम के लिए अल कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन तमिलनाडु को रॉयल फिजिशियन शाही हकीम अवार्ड से नवाजा जाता है। पहले ये मिट्टी की जो खुशबू है यहाँ पे हमारे पास, इनको ये कलम में लेके आया हूँ। होम्योपैथी सेक्टर में आरोग्य गॉल ब्लैडर स्टोन स्पेशलिटी सेंटर के काम को देखते हुए इन्हें एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स अवार्ड से नवाजा जाता है। अब अपने सम्मान के इस गौरवशाली मंच पर द सेवियर फेयर कंपनी को आमंत्रित करते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में इनकी एक्सपर्टीज और इनोवेशंस ने इन्हें एक अलग पहचान दी है। आज हम इन्हें सम्मानित करते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं और इन्हें ग्लोबल लीडरशिप इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डीसीटी रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स को, जिनके दूरदृष्टि और नेतृत्व ने हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में आउटस्टैंडिंग पहचान दिलाई है। और इसके साथ ही इन्हें हम अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। एमर्जिंग रियल एस्टेट डेवलपर का यह अवार्ड 16 साल से रियल एस्टेट के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए इन्होंने न केवल रायपुर और छत्तीसगढ़ में कंपनी के संचालन को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि श्री बालाजी बिल्डर्स को एक भरोसेमंद रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में स्थापित किया है। इनके इस प्रॉमिसिंग एफर्ट को देखते हुए मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर के अवार्ड से इन्हें नवाजा जाता है। इसी इंडस्ट्री में देव शांति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके लिए उन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अवार्ड से नवाजा जाता है। तो इसी के साथ हम अपने आज के इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आप सभी मेहमानों का यहां आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ काम करते रहें और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ पूजा and we warmly welcome you at the Zee Media Global Innovation and Leadership Summit 2025. आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि जिस संस्था ने भारत में पत्रकारिता की परंपराओं को दिशा दी, भारत का पहला मीडिया ग्रुप Zee Media, who is carrying the legacy, is here in London. Zee Media का सफर केवल नेशनल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा। अपनी सशक्त पत्रकारिता और क्रेडिबल कंटेंट के साथ हम अपनी पहचान ग्लोबल लेवल पर बना रहे हैं। दुनिया भर में हमें नई पहचान, नई स्वीकृति और नया सम्मान मिल रहा है। वियतनाम से लेकर मॉरिशस तक, दुबई से लेकर एशिया के कई देशों में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के बाद आज हम पहुंचे हैं लंदन। और लंदन की इसी धरती पर आज जी भारत अपने मेहमानों के साथ उन लीडर्स का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके न केवल अपने देश का बल्कि पूरे विश्व का नाम रोशन किया है। तो कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ, और इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा जी को, और साथ ही हमारे खास मेहमान आरिफ अजाकिया जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम एंड ऑथर, सुरेश मंगलागिरी जी, जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज फ्रेंड्स बीजेपी, और साथ में रमेश अरोड़ा, प्रेसिडेंट नमस्ते भारत।
कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी को। आप मंच पर आए और ओपनिंग स्पीच के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं जी भारत और समस्त जी मीडिया परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम सब भी लोग यहाँ जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो ब्रिटेन और भारत के संबंधों को एक नया आयाम देने वाला है। भारत ब्रिटेन की दोस्ती को नए सिरे से परिभाषित करने वाला है। इसी साल जुलाई के महीने में भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ी पहल हुई है जिसे मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं और इस पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत दोनों देशों के कारोबारियों के बीच रिश्तों को जिस बुलंदी पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हमारा मकसद उस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। जी भारत एक नेशनल न्यूज चैनल होने के नाते इस इवेंट के जरिए एक मंच देने का काम कर रहा है जो दुनिया की चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को करीब लाएगा। जिन लक्ष्यों को FTA के तहत निर्धारित किया गया है उन्हें हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। और हम चाहेंगे पूजा एक बार फिर से पूरे कार्यक्रम को आप संचालित आगे करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे खास मेहमान आरिफ अजाकिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम एंड ऑथर। आप मंच पर आए और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी को। आप आए और इनका स्वागत करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे खास मेहमान सुरेश मंगलागिरी जी, जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज फ्रेंड्स बीजेपी को। जोरदार तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए रमेश अरोड़ा जी, प्रेसिडेंट नमस्ते भारत का। संतोष जी उन्हें यहां मंच पर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं DY ग्रेवाल जी, फॉर्मर मेयर लंदन को। और अब हमारी शाम के खास मेहमान देवेंद्र त्यागी जी जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगी और साथ ही जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी उनका स्वागत करेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं अवार्ड्स का सिलसिला, इस शाम की सबसे खास चीज, जिसके बाद हम संवाद की ओर बढ़ेंगे। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करते हुए हम गर्व अनुभव करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड को बेस्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी के अवार्ड से नवाजा जाता है। राकेश श्रीवास्तव इस अवार्ड को रिसीव करेंगे रमेश अग्रवाल के बिहाफ में, और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे खास मेहमान को जो इस अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे, आरिफ अजाकिया जी। भारत अपने साथ साथ दुनिया के देशों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमने देखा कि जब दुनिया महामारी के दौरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था तो भारत अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की नई रिसर्च से दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहा था। इसी कड़ी में स्टेरीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को इनके योगदान के लिए इमर्जिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया के अवार्ड से नवाजा जाता है। और अब हम सम्मानित करेंगे फॉर्मर जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट श्री रजनीश भटनागर जी को। श्री रजनीश भटनागर जी ने जुडिशरी ज्वाइन की साल 2000 में एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट पहुंचे साल 2019 में टिल हिज रिटायरमेंट। अपने इस कार्यकाल में इन्होंने न्यूमरस कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल, सिविल और वो केसेस जो सीधे पब्लिक इंटरेस्ट से संबंध रखते हैं उन्हें हैंडल किया। इस योगदान के लिए जस्टिस रजनीश भटनागर को एग्जेम्पलरी सर्विस इन लॉ एंड सोशल वर्क के अवार्ड से नवाजा जाता है। और अब सम्मान उस फिल्म के डायरेक्टर का जिन्होंने पूरे देश की निगाहें खींची। फिल्म के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश हुई कि कैसे भारत में माइनॉरिटीज ने
फैंटेसिज्म की शुरुआत की और कैसे ये मेजॉरिटी के ऊपर भारी पड़ने लग गए। इस झकझोर देने वाली कहानी को बड़े पर्दे पर बड़ी हिम्मत से दिखाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर सम्मान के काबिल हैं। ड्रीमलैंड ग्रुप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ रियल एस्टेट के सेक्टर में शानदार काम कर रहा है। इनके काम को ध्यान में रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान के लिए ड्रीमलैंड ग्रुप को एक्सीलेंस इन क्राफ्टिंग रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अवार्ड से नवाजा जाता है। राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का योगदान भी हेल्थ के क्षेत्र में सराहनीय रहा है। हेल्थ के सेक्टर में फूड सप्लाई की भूमिका भी काफी अहम होती है। राइट वे हेल्थ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को अपने इसी योगदान के लिए इनोवेटिव नेटवर्क मार्केटिंग एंड फूड सप्लीमेंट्स के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने शानदार काम के लिए आइडियल फ्लो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड को आउटस्टैंडिंग एंड मोस्ट इनोवेटिव इंजीनियरिंग 2025 के अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर जी जगन्नाथन, डायरेक्टर आइडियल फ्लो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड का। जैसा कि हमने कहा कि भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, वहीं भारत में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, यूनानी और आयुर्वेद हेल्थ सेक्टर में दुनिया के लोगों का भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाता आ रहा है। हेल्थ सेक्टर के ऑल्टरनेट मेडिसिन में शानदार काम के लिए एयर कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन तमिलनाडु को रॉयल फिजिशियन शाही हकीम अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर शेख अकबर कौशल, फाउंडर एंड फिजिशियन अल कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन तमिलनाडु का। एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ हमारे देश में बहुत से लोगों का भरोसा होम्योपैथी मेडिसिन में भी कई साल से कायम रहा है। होम्योपैथी सेक्टर में आरोग्य गॉल ब्लैडर स्टोन स्पेशलिटी सेंटर के काम को देखते हुए इन्हें एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां डॉक्टर VR सुधाकर, BHMS MD, डॉक्टर आरोग्य गॉल ब्लैडर स्टोन स्पेशलिटी सेंटर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली अवार्ड कैटेगरी की तरफ रुख करते हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी DCT रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स को, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में आउटस्टैंडिंग पहचान दिलाई है। रियल एस्टेट सेक्टर में गुणवत्ता, भरोसा और समयबद्ध निर्माण इनकी सबसे बड़ी पहचान है। राजेंद्र सिंह राजपूत के लिए जोरदार तालियां। हर आम आदमी का सपना होता है अफोर्डेबल होम्स का। इसी सपने को साकार कर रहा है श्री बालाजी बिल्डर्स। लोगों के सपनों को वक्त पर आकार देने के लिए ये जाना जाता है। इनके इस प्रॉमिसिंग एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर के अवार्ड से हम इन्हें सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां विजय यादव, डायरेक्टर श्री बालाजी बिल्डर्स के लिए। भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। पहले लोग हॉलीवुड को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले 5 दशकों में जिस तरह काम किया है, उससे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने दुनिया का ध्यान खींचा है, लोगों का भरोसा भी जीता है। इसी इंडस्ट्री में देवशांति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए इन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अवार्ड से नवाजा जाता है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों को सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की पढ़ाई करवाने में राहुल IAS इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम है। लीगल एजुकेशन के क्षेत्र में राहुल IAS इंस्टीट्यूट का कोई सानी नहीं है और इस अवार्ड के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी राहुल यादव, चूंकि मौजूद नहीं है, उनकी बेटी एडवोकेट अनन्या यादव, डिप्टी डायरेक्टर राहुल IAS इंस्टीट्यूट, इस अवार्ड को ग्रहण करेंगी। इन्हें प्रीमियर लॉ कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अवार्ड से हम सम्मानित करते हैं। भारत विविधताओं का देश है और आज हम सम्मानित कर रहे हैं श्री मनमोहन शर्मा जी को, एक ऐसे दिग्गज व्यक्ति जो पिछले 35 वर्षों से भारत के लोक संगीत का प्रचार प्रसार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कर रहे हैं। भारत की ग्रामीण कलाकारों की कला और संगीत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए गंगा डिजिटल को एक्सीलेंस इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां मनमोहन शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर गंगा डिजिटल के लिए।
अवार्ड्स में आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बजरंगी प्रसाद यादव जी को, जो बीजेपी किसान मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। ये झारखंड के आदिवासी इलाके साहिबगंज के रहने वाले हैं। राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। इस उपलब्धि के लिए इन्हें एक्सीलेंस इन सोशल वर्क एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और अब हम सम्मानित करते हैं ऐश्वर्या मौसम चौधरी जी को, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैं। पेशे से वकील हैं, भारत की सत्ताधारी दल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। साथ ही वो नर सेवा नारायण सेवा संस्था चलाते हैं और इन्होंने कई बार विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों की मदद की है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इनकी इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए इन्हें आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी सर्विस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी सूची चौधरी, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आती हैं और 2 बार की विधायक हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के चुनाव में सबसे यंग महिला विधायक बनी। इन्हें हम एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द यंगेस्ट एमएलए इन उत्तर प्रदेश के अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां मिसेज सूची मौसम चौधरी, एमएलए बिजनौर। अब हम सम्मानित करेंगे श्याम बिहारी लाल जी को, जो यूपी के बरेली जिले से आते हैं। वो प्रोफेसर हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। श्याम बिहारी लाल जी बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं और 2 बार के फरीदपुर विधानसभा से विधायक हैं। सबसे बेहतर काम उन्होंने नशे के खिलाफ किया है और उन्हें एक्सीलेंस इन सोशल वेलफेयर फॉर द फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड कार्टल्स के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शख्स को, जो वर्ल्ड फेमस ताज नगरी आगरा से आते हैं। रोहित जैन रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है। सबसे खास बात यह है कि बहुत सारी सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग आगरा के अंदर बना रहे हैं, मगर लंदन और यूरोपीय देशों की थीम पर उन्हें डेवलप किया जा रहा है। रियल एस्टेट यूपी की इकोनॉमी में बड़ा बढ़ावा दे रहा है और इसी योगदान के लिए इन्हें एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट के अवार्ड से नवाजा जाता है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कुलदीप ठाकुर जी को। कुलदीप जी टोल कंपनी ऑपरेट करते हैं, जो भारत में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन उनकी कंपनी इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। कुलदीप जी की बड़ी उपलब्धि यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके इस प्रयास और मेहनत के लिए उन्हें कमिटेड टू एक्सीलेंस इन सोशल वर्क एंड टोल प्लाजा ऑपरेशंस के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां। We have with us Lord Karan Bilimoria, Member of the House of Lords of the United Kingdom. Also with us on the panel, Jane Kinninmon, Chief Executive Officer of the United Nations Association UK, Senior Associate Fellow at the ALN. Also with us here is Ramesh Arora, a seasoned hotelier with expansive experience as an entrepreneur and someone who has been extensively worked. I'm the CEO of the Signature Hospitality Group. Welcome, sir. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you. First of all, thank you very much for taking out the time. We're speaking at a time when the relationship between India and the UK has been described in multiple ways, but one unanimous conclusion has been that it's a future-oriented relationship. I want to start with you, Lord Karan Bilimoria. There are so many aspects to this relationship. Something that you have spoken about extensively is also the opportunities that the free trade agreement will actually culminate in because of the passion or the interest that both the sides have when it comes to digital infrastructure. I want to start off by asking you for your comments on how you assess the relationship at this point. How would you describe it? Thank you very much. It's a pleasure to be with you. I've been working on the UK-India relationship for 22 years now. I was born and brought up in India, in Hyderabad. I came here to study as a student in the UK when I was 19 years old, and I started my business, Cobra Beer, and then joined the House of Lords 19 and a half years ago. And my passion has been to put the UK and India together. I've always believed in the potential of both countries, and I always believed India would take off one day. And sure enough, in 1991, India liberalized, and since then, the world has been watching India's progress. And I
say that the Indian Express has left the station. India is now the fastest growing major economy in the world, with a growth rate now approaching over 7% a year, with a target of 8% a year. And the UK has a natural partner of India, always has been. And when I started as the co-chair of the Indo-British Partnership in 2003, with Narayan Murthy as my counterpart, as the Indian co-chair, I was the UK co-chair, then I founded the UK India Business Council, and all the time working to try and increase trade, business and investment between our two countries. The reality is today, I'm proud to say that we are almost 50 billion pounds sterling, goods and services, bilateral trade between our two countries. I do want to, yes, and this is just a sample of the potential that this relationship really has. I do want to do some more number crunching with you and just dive deeper into that aspect. But I want to also get in, Jane, this territory of the India-UK relationship is something that you're very familiar with. I want to ask you first for your comments on what, according to you, is the immediate future going to look like for this partnership. And there are, of course, a number of opportunities because of the mutual interests that the two sides have. Thank you, Molly. It's very nice to be here today. And I think it's interesting you called it a future-oriented partnership because I think it has a lot to do from the British side with really seeing India as a rising power in the world. So clearly, right now, the primary focus is on trade, and I think for all aspects of British foreign policy, that desire to get new trade partnerships and ultimately create growth and jobs, that's the number one priority. But there are other things going on too. It's notable that there is growing defence cooperation between the UK and India, especially in the field of maritime security in the Indo-Pacific. So although India is a neutral country, it does see a common interest in basically keeping the seas safe and free for trade. Indeed. And when we're talking about business and the potential that it really has as far as the partnership is concerned, how can we not get in Ramesh Arora, who's been here for over 2 decades, of course, and also is a seasoned entrepreneur, has seen it firsthand as well. So from the time when we started talking about the FTA to now, and now coming to the point where we're talking about the journey ahead, it's been quite a long journey, but from here onwards, how do you assess the FTA to change things in the immediate future? Thank you, Mori. Appreciate it. I think the agreement done by our Honorable Prime Minister Modi ji and Prime Minister Sir Keith Starmer has been fantastic. It's good for the people of UK and good for the people of India. And what we consider one way is to make money, business, only business. Other way is to make holistic money. We are transforming from transactional business to holistic business. I think, there is so much more that needs to be discussed and accounted for, given that this partnership or this relationship really going to be having to wrap this up on this note. But appreciate very much your being here and hoping to have more such conversations that really do signify that the India-UK relationship is taken very seriously by both sides, and the people on both sides are very passionate about this relationship as well. Lord Karan, Jane, Ramesh Arora, sir, thank you very much for being here. Thank you. Thank you. Thank you very much. और अब संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं हमारे मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सुनील कुमार, सीईओ ड्रीमलैंड डेवलपर्स, साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी रोहित जैन, चेयरमैन अहिंसा ग्रुप, और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कुलदीप सिंह, एमडी एसकेएम ग्रुप को। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस मंच पर। शुरुआत रोहित जी आपसे करते हैं। भारत में इस मंच पर हम यहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ रही है, और ऐसे में जो रियल एस्टेट का मार्केट है, जो बिजनेस का मार्केट है, वो कितनी गति दे रहा है और भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट कर रहा है। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ मैनपुरी ज़िले के एक छोटे से कस्बे करहल से, और वहाँ से लेके आगरा तक और आज आपके साथ लंदन बैठा हूँ। ये जर्नी वास्तव में बहुत ही आनंददायक रही
और इसमें मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का बहुत योगदान है। खासकर मेरी वाइफ, जिसने मेरे साथ पिलर बनकर हर कदम पे साथ दिया है और बहुत ही हमें प्रेरणा दी है हर काम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इस जर्नी में हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में आज जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करता ही है, साथ ही इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ा कार्य करता है। यूपी के अंदर में योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका सपना 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको पूरा करने में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट बहुत बड़ा काम करता है। बिल्कुल। सुनील कुमार जी, आपसे सवाल यही है कि भारत का जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो किस तरीके से रोजगार, निवेश और जीडीपी में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, और साथ ही हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो आपकी जर्नी के बारे में भी समझना चाहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो जी भारत का मैं आभार करता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल मंच पर मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया, और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो रियल एस्टेट आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। खाली लोग रहने के लिए नहीं, अपनी पूंजी को संभालने के लिए भी रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर और बहुत बढ़ेगा। कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक रफ्तार का एक बड़ा इंजन, अगर हम कहें बिजनेस को, रियल एस्टेट को, उसमें एक बड़ी भूमिका ये निभा रहा है, और किस तरीके से देखते हैं? आज इस मंच पर यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूजा जी, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज लंदन की धरती पे जी के मंच को मैं सलाम करना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं को और बहुत सारे बिजनेसमैन और अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है, और बहुत जल्दी, जैसा कि आज उन्नति कर रहा है देश हमारा, 3rd पायदान पे आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जो व्यवस्थाएं आज की डेट में भारत सरकार ने की हैं युवाओं के लिए, व्यापार के लिए, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और आने वाले समय में, जैसे मैं खुद एक टोल ऑपरेशन कंपनी चलाता हूँ, तो जहाँ भारत में रोडों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, आज बहुत अच्छे तरीके से वो व्यवस्थित हुई है। कहीं भी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया, उसके तहत ऐसे रोडों की व्यवस्था सही करी गई जहाँ पे मतलब काफ़ी समय से रोडों पे काम ही नहीं हुआ था। अगले 10 साल में आप किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहूँगी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आप तीनों इस पर दें। भारत के मार्केट को ग्लोबल लेवल पर जाता हुआ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ग्लोबल लेवल पर भारत के मार्केट को हम 2nd नंबर की इकोनॉमी देख रहे हैं, और बहुत जल्दी हम 2047 जो मोदी जी का विजन है उसको पूरा होते हुए और अगले 10 साल पहले ही देखना चाह रहे हैं। मोदी तो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, तो 10 साल भी नहीं लगे मेरे ख्याल में, तो 5 साल में बन जाएगी। आने वाले समय में देखिए, भारत सरकार और भारत के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, हर देश जुड़ना चाहेगा, और अर्थव्यवस्था हमारी बहुत मजबूत होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अब अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भरत सिंह, डायरेक्टर उदयपुर फाइल्स। जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही जोरदार तालियां देव कुमार, डायरेक्टर देवांशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का यहाँ पर। तो लंदन में कैसा लग रहा है, और जी मीडिया के इस समिट के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत इसी से कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट को, कि यहाँ पे हम लोग मौका दिया है और काफ़ी सम्मान दिया, और हर एक के कार्य के क्षेत्र में जो है उससे सम्मान दिया जा रहा है। तो सिनेमा में भी आप लोगों ने जो है सम्मान दिया है मुझे, तो मैं इसके लिए जी भारत और जी मीडिया ग्रुप को धन्यवाद कहना चाहूँगा। It's truly privileged to be here with the help of जी मीडिया, और कितने प्यारे दोस्त यहाँ मिले हमें इस मंच के थ्रू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली सच बताएं तो आपके ऐसे प्रयासों को बहुत उन्नति मिले और बहुत सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। क्योंकि प्रति व्यक्ति अगर ऊर्जा का संचार जिस प्रकार से आप उन्हें देते हैं, अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, तो मुझे लगता है
कि संपन्नता बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। संपन्नता भरत जी, आपने जो कहानी कही है उदयपुर फाइल्स के जरिए, वो कहना आसान नहीं है, एक हार्ड हिटिंग स्टोरी। इसे बनाने से पहले आपको डर नहीं लगा कि बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, इसका विरोध भी होगा, जो बाद में आखिर हुआ भी था? कैसे ये कहानी कहने की आपने हिम्मत की है इतने बड़े पर्दे पर? उदयपुर फाइल्स की शुरुआत जो है वो मतलब जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखा है उनको नहीं पता होगा। कन्हैयालाल साहू जी के परिवार का दर्द। जब हम उनके घर पे गए थे तो उनके बेटे यश साहू से मुलाकात हुई और उनकी धर्मपत्नी जो है यशोदा जी, उनकी आंखें देख के लग रहा था कि हाँ मतलब आंसू अभी भी जो हैं वो सूखे नहीं हैं। और मुझे घर में एक कोने पे जो है एक अलमीरा में एक कलश दिखी, तो मैंने पूछा ये कलश क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर की अस्थियां हैं। मतलब कि उन्होंने अभी तक की अपने पिता के अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया है जल में। मतलब अमूमन हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है, किसी का जो है दाह संस्कार के बाद जो है उसकी अस्थियां प्रवाहित करनी ही होती है, लेकिन उनके घर के अंदर रखा हुआ है। ये चीज़ें देख कर मेरे जो प्रोड्यूसर सर हैं अमित जानी जी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, बिकॉज इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि अगर सिनेमा के माध्यम से आप किसी चीज़ को दिखा सकते हो, किसी मैसेज को आप अगर क्योंकि हमने ओवरसीज इसको रिलीज किया था, तो आई होप कि ये बहुत ही लोगों को पता चला होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो आज आपके चैनल से माध्यम से पता चल जाएगा कि अभी भी वो अस्थियां उनके घर में ही हैं और विसर्जित नहीं हुए। वो इंतज़ार कर रहे हैं उन कातिलों का जो है, जो निर्मम हत्या करके उनका जो दिन दहाड़े जो एक दर्जी की हत्या कर दी गई। दर्जी जो कि ना जात देखता है ना धर्म देखता है, बस कपड़े जो भी आ जाए कपड़े सिल देता है। एक इनोसेंट इतना ब्रूटली मर्डर किया गया उनका। देव कुमार जी, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, म्यूज़िक, OTT के बारे में बात करें, तो आपने इसमें कैसे कदम रखा इसके बारे में बताइए। और साथ ही ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसमें एक भारत के अंदर जो इंडस्ट्री है उसमें ग्लोबल पोटेंशियल आपको नज़र आता है? बिल्कुल ग्लोबल पोटेंशियल है। वो शुरुआत होती है हमारी सभ्यता और संस्कृति से। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो द्वापर त्रेता काल से, भगवान राम के जन्म से और कृष्ण भगवान के जन्म से सबसे पुरानी हमारी एक वैश्विक संपत्ति है। तो क्यों नहीं उसको हम आगे बढ़ाएं, क्यों नहीं पूरा वर्ल्ड ये समझे, ये जाने कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वो कितनी पोटेंशियल रखती है। और कितना, आप देखिए, जो भी इंसान है उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस ही उसको आगे ले जाता है, बाकी सब परचम जो है वो सिर्फ दिखाने का होता है। हर आदमी के अंदर ईश्वर है, हमारे शास्त्रों ने भी हमें सिखा दिया था। हर आदमी कहाँ जा सकता है वो भी आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है। आपके आजू वाला या आपके बाजू वाला आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है, कितना कॉन्फिडेंस वो आपसे ले रहा है, कितनी एनर्जी आपसे रिफ्लेक्ट करवा रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आप ही खुद वो हैं जो आप खुद को बना सकते हैं। यानी आप ही अपने खुद के मेंटर हैं। ये बहुत बहुत क्लियर सी वर्ड है। तो जो संस्कृति और सभ्यता हमारी उस वक्त की थी उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो सबसे पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक वर्ड था जो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, वो अंताक्षरी एक हमारा प्रोग्राम हुआ करता था, जो पहले आप ही का मंच जो जी चलाता था। उसके बाद हमने उसको पैन इंडिया डॉक्टर अनु कपूर जो हैं उनके साथ किया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। भोपाल हमने किया, इंदौर हमने किया। और मज़े की बात, भोपाल तो हमारी संस्कृति, आप क्या सोचेंगे कि कंपटीशन गानों के बीच में नहीं हुआ, संस्कृत के श्लोकों और दोहों के बीच हुआ। और उस पर वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति निखर के आई, उसको वहाँ के संस्कृति डिपार्टमेंट ने बड़ा सहारा। आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है लंदन आकर, और वो भी जी मीडिया के मंच पर? मैं एक बहुत सामान्य से परिवार से थी, और सच बताऊं तो सच में ये जो जर्नी मेरी रही है, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस लेवल पे आके और यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी विधानसभा को इस मंच तक पहुँचाया है और भारत से लंदन तक लाके सम्मानित करा है।
वाकई में जोरदार तालियां। देखिए एक महिला कितना संघर्ष करके चले सर। मैं एक चीज़ और ऐड बिल्कुल। करना चाहूँगी। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी जर्नी रही है, तो मेरे सिर पे सजा हुआ एक ताज सभी को नज़र आया है, लेकिन मेरे पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे। प्रोफेसर साहब, आप तो देखिए प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर से राजनीति में कैसे एंट्री करी आपने, और 2 बार विधायक बन गए आप भी? जी, पहले तो मैं जी मीडिया को थैंक्स करता हूं कि उन्होंने लंदन में लाके मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। और जो आपका सवाल है उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से मुझे लगता था कि मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिले तो मैं इलेक्शन लड़ूं। चूँकि मैं हाशिए का व्यक्ति हूँ, डाउन ट्रॉडन फैमिली से आता था, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक छात्र संस्था है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, उसमें मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। और 2006 में मुझे कहा गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दी जा रही है, आप जाइए और वहाँ इलेक्शन लड़िए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है और चर्चा हम संक्षिप्त में अब करना चाहेंगे। जल्दी से आखिरी सवाल एक आपसे मेरा। पहला सवाल यही कि आपने अपनी तो उपलब्धियां बता दी, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि भारत अब दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अगर हम देखें तो यूपी का कितना आप योगदान मानते हैं? संक्षिप्त में जवाब, और आपका अब आगे क्या लक्ष्य है अपनी विधानसभा के लिए? यूपी आज के समय में यूपी 2017 के बाद, और खासकर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही नक्शा बनना शुरू हो गया। आज उत्तर प्रदेश में जो हाईवे हैं वो टॉप क्लास के हाईवे हैं, और नॉर्थ साउथ में हाईवे नहीं थे, उनको भी बनने का जो है वो काम शुरू हो गया है। सुचि जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे आपने संघर्ष करके आप इस मुकाम तक पहुंची, महिला सशक्तिकरण के लिए भी आप काम कर रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ही, अब क्या है आगे का लक्ष्य, क्या लेकर चल रही है, और महिला सशक्तिकरण के लिए आप किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पहले महिलाओं शाम के समय में जाते हुए बहुत डर लगता था, या फिर मतलब एक डर पेरेंट्स के मन में भी रहता था कि हमारी बच्चियां अगर घर से निकली हैं तो वो सुरक्षित आ पाएंगी या नहीं। लेकिन आज वो फ्रीडम है, आज वो आज़ादी है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए, और अपने अनुभव आपने साझा किए, क्योंकि यही अनुभव कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे इस पैनल डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अपने अगले पैनल की तरफ बढ़ते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रजनीश भटनागर जी, रिटायर्ड जज। इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मनमोहन शर्मा जी, डायरेक्टर गंगा डिजिटल को, और साथ ही मैं इनवाइट करूंगी अनन्या यादव, डायरेक्टर राहुल IAS। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। सबसे पहले लंदन में आकर और इस मंच पर जहां हम भारत की उन तमाम शख्सियतों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर भारत को पहचान दिलाई है, इस समिट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये विशेष पहल पहली बार जी मीडिया ने की है। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरी दूसरी विजिट है लंदन को, लेकिन इट इज़ अ टोटली डिफरेंट विजिट। पहले आए थे तो और जगह घूमा था, लेकिन अब यहाँ इन सब लोगों से मुलाकात हुई, जी से मुलाकात, जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बैठने का प्रिविलेज दिया है, तो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो बहुत जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दे मे कीप देयर गुड वर्क गोइंग ऑन। इतना अच्छा लगा यहाँ लंदन में आके, मतलब सोचा भी नहीं था इतना सुंदर तो शहर लंदन देखा, और जी मीडिया ने जो हमारे को ये मौका दिया, जो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। जी मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? जी, अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू जी मीडिया फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। हम सबको यहाँ इकट्ठा किया आप लोगों ने, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे। मेरे पापा अभी आ नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, तो उनके बिहाफ पे मैं हूँ, बट उनके तरफ से भी मैं ये बात कह सकती हूँ कि इट इज़ अ कंप्लीट ऑनर टू बी हियर। रजनीश जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करती हूँ सवालों की। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, इस लीगल फील्ड में आपकी जर्नी कैसी रही, और आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, इसके बावजूद? ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरी। मैं हमेशा फोर्सेस में जाना चाहता था, आर्म्ड फोर्सेस में, और इवन मैंने CDS क्लियर करके
पायलट ऑफिसर की तैयारी भी कर ली थी, बट समहाउ मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसके फादर 30,000 कोर्ट है दिल्ली में, वही एक पेरेंट कोर्ट होती थी 30,000 में, अराउंड से 30 इयर्स बैक, और तब और कोर्ट्स नहीं थी, वो मेजर कोर्ट होती, तो मैं उसके साथ वहाँ उनको लंच देने जाता था। तो वहाँ जाके मैंने कोर्ट की वर्किंग, पुलिस की वर्किंग और एडवोकेट्स का सारा कल्चर देखा, तो मेरा इंटरेस्ट 3-4 बार जाने के बाद वहाँ इंटरेस्ट बन गया। देन आई चेंज माई लाइन, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया और फिर प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो 13 साल मैंने प्रैक्टिस करी इन डिफरेंट कोर्ट्स इन दिल्ली। मनमोहन शर्मा जी, हम आपकी भी कहानी जानना चाहते हैं। गंगा म्यूजिक कंपनी को शुरू करने का विचार कैसे आया, किस तरीके से इसकी शुरुआत की, क्या चुनौतियां आपने फेस की इसके दौरान? गंगा कैसेट के अंदर मेरे पास हमने लगभग 35 साल पहले इसको काम को शुरू किया था। ये एक बहुत अच्छी, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन आपको मैं थोड़ा अपने बारे में, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि मैं क्या करता हूँ। हमारा लोक संगीत का काम है और लोक जो भारत का फोक म्यूज़िक है उसको मैं बनाता हूँ। हमारी टीम में पूरी गंगा कैसेट के नाम से बहुत पहले कैसेट चलती थी और आज वो गंगा डिजिटल के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमारे 70 के करीब चैनल हैं जिनमें करीब 8 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये हमारी स्टोरी है। अनन्या यादव जी, मैं चाहूँगी कि आप हमें ये राहुल IAS इंस्टीट्यूट जो है उसके कार्यक्षेत्र के बारे में बताएं और साथ ही इस लेगेसी से आप कैसे जुड़ी उसके बारे में भी बताएं। राहुल IAS स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो आया तो बहुत बाद में, बट मैं थोड़ा सा अपने पापा के बारे में बताना चाहूँगी। 1989 में उन्होंने बिहार, जहाँ से वो हैं, वो जगह छोड़ के उन्होंने दिल्ली आने का फ़ैसला किया। उनके पास सिर्फ 550 रुपीज़ थे उस टाइम पे और कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाके अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करूंगा। उसके बाद वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं IAS UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने लॉ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया उस टाइम पे और फिर UPSC की तैयारी में लग गए। आगे जाने के बाद उन्होंने 1997 में एक छोटे से रूम में अपना कोचिंग स्टार्ट किया, बट एक बहुत छोटा सा कमरा होता था, वहाँ पे कुछ ही बच्चे होते थे। उस टाइम उनके पास थे कुछ 1266 रुपीज़। वहाँ से उन्होंने IAS की कोचिंग का जो थॉट था वो स्टार्ट किया, बहुत कम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो फिर 2001 4 जुलाई 2001 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जुडिशरी की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो दैट वाज द डे ही डिसाइडेड कि मैं जुडिशरी, जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पढ़ाऊँगा, योगदान दूँ। क्योंकि हम समय की पाबंदियों में बंधे हुए हैं, मैं चाहूँगी जल्दी से 10-10 सेकंड में सर आप यंग प्रोफेशनल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यंग प्रोफेशनल्स को यही एडवाइस है कि आप जो एडवोकेसी है उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं कि जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर तो बैचलर डिग्री करी और जॉब लग गई, वो लॉयर्स के लिए नहीं है, उसको मेहनत करनी है। और ये भी कहूँगा कि जो भी बच्चे जो चाहते हैं कि अब मैं जुडिशरी में जाऊं या मैं अच्छा लॉयर बनूं, तो उनको दिन नहीं रात नहीं मेहनत करनी है। सिर्फ कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात है शॉर्टकट्स नहीं है जी। आप क्या युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं? वो आज जो युवा पीढ़ी है वो कोई भी बिजनेस करता है तो वो थोड़े से दिन के अंदर ही हताश हो जाता है। अपने माँ बाप को कह देगा कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को कोई दूसरी लाइन दो। मैं उनको हौसला रखना चाहिए। अनन्या, आप तो खुद यंग हैं, एक लाइन में क्या संदेश है आपका? जो भी काम करे पूरे दिल से करे, पूरी मेहनत से करे, हमेशा अपने रूट से ज़रूर जुड़े रहें और कभी भी कुछ भी करो लाइफ में अच्छे इंसान बन के ही सारे काम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। बजरंगी जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बीजेपी से, जो रूरल पार्टी है इंडिया की, उससे आप जुड़े हुए हैं और किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? खंड से आते हैं, साहिबगंज जिला है, जहाँ 80% उस इलाके में ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी, आदिम जनजाति, पहाड़िया जाति के लोग रहते हैं। उनके कठिनाई को देखा तो ये सब देखकर हमने तय किया कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। माइनिंग सेक्टर में, स्टोन माइनिंग में सेक्टर में, वहाँ चूँकि माइनिंग का बहुत ज़्यादा झारखंड में
है, उस स्थिति में माइनिंग सेक्टर में हमने काम किया और निश्चित पर से उससे 2 पैसा जो कमाया समाज सेवा में, वैसे निर्धन लड़कियों का शादी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी धर्म की हो, सभी का हम निःशुल्क शादी सामूहिक विवाह कराते हैं। साथ ही साथ आदिम जनजाति जो पहाड़िया जाति है जी, उसको उसकी सेवा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। चले ऐश्वर्या मौसम चौधरी जी, क्योंकि आप नर सेवा नारायण सेवा चलाते हैं, आप जो बेजुबान जानवर हैं उनकी मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में भी आपका मैं देख रहा था प्रोफाइल, वहाँ भी आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारी वीडियोस भी मैंने आपने देखी। कैसे समाज के प्रति जो समाज सेवा का जो आइडिया था वो कैसे आया आपके दिमाग में, और कैसे और लोगों की मदद करते हैं आप? तो वकालत करते टाइम समाज की कई परेशानियाँ मेरे सामने आती थी। उस वक्त मैं सोचता था किस तरीके से हम समाज की मदद करें। लीगली हम लोग उनकी मदद करते थे, हल्के हल्के, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। तो फीस कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं? फीस कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं? मैं वकील मोटी फीस ले लेते हैं। मेरे जीवन के ऐसे किस्से हैं कि एक बहन मेरे पास आई और उसने 10-10 रुपये इकट्ठे कर रखे थे और 500 रुपये लाई, उसने मेरे आगे फ़ीस रखी और बोली कि मेरा केस कोई भी नहीं ले रहा है बिजनौर में और मैं चाहती हूँ आप मेरे एडवोकेट हों, क्योंकि उसके साथ जो टॉर्चर हुआ था वो एक एडवोकेट के लड़के ने ही किया था। तो बात होती है तो कई लोगों की उसमें दखलंदाजियाँ हो गई। तो मैंने जब उसका केस लड़ा और उसकी मदद करी, वो आज भी मेरे हाथ पे राखी बांधती है। और मेरा जब बुरा वक्त था, उस वक्त मेरी कोई सगी बहन नहीं है, बट तहरी चचेरी बहनें हैं, वो उनमें से कोई नहीं आई और उसने इस हाथ पे राखी उस बुरे वक्त में भी बांधनी नहीं छोड़ी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी, जी मीडिया परिवार की तरफ से भी आपके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच। तो अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुरेश मंगलागिरी जी, जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज फ्रेंड्स बीजेपी को। आप मंच पर आए और हमारे समिट के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। नमस्ते, भारत माता की जय। When Modi has taken over, the world has changed and everything. The development which we have seen, When Modi ji first time 2015 came to London, the way this kind of country has received him, and all media houses have printed front page, Sky and BBC and everyone, top newspapers or something. This is a proud moment for every Bharatiya, which we came from India to here. This is the development. Last 11 to 14 years, last 11 years, the Modi has developed the country. When Modi has taken over, which we had the 10th economy, world 10th economy. Now, within 11 years, we are now in the 4th economy. Within 2 years, we are going to go by 3rd biggest economy. And which we have seen many challenges Modi ji has faced because Article 370, no one expected that Article 370 will be removed. The development will be North Jammu Kashmir. It will be such a vast development. Now you can see every time when you see that last 70 years, bombs and then terrorists and everything's happened. Now the development has taken next level. The property values are gone high. And then when you see that northeastern states also, northeastern states, there was no development, nothing was there. Now the development, media people knows that, everyone knows that. Even crisis, global crisis happening everywhere, 2020, COVID, but now Modi has taken different level. We have researched and then found vaccination. We have sent many countries free of charge for the vaccination also. When you see the technology, global NASA and everyone, but now India has launched more than 100 satellites in one day, one go. This is the knowledge and manpower which we have to use it. This is the reason. Next, I'm coming to the media. When we have, every time we see BBC and other things, but no, this is the media level everywhere, it is going on globally.
just now I saw that Vietnam, Dubai, and now the G Media has come to globally, London also. I wish you all the best, G. And then this is the time we have to expand and exposure everywhere in the country, all over the world. Thank you. And then I wish you all the best to G. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रमेश अरोड़ा जी, प्रेसिडेंट नमस्ते भारत। आप मंच पर आएं और हमारे इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द जरूर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, वेलकम टू एवरीबॉडी टू लंदन। हम आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू संतोष जी एज वेल एज the full team of Z. They're here. ZTV is one of the leading channels of the world, and we are so much happy to associate ourselves, Santoshji, with you, as well as the full ZTV team. And yes, thank you very much for extending this. And I would also like to thank everybody, all the guests, Sureshji and all the guests, for having us here. Thank you. और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। हमारे तमाम अवॉर्डीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जी मीडिया परिवार की तरफ से। आप इसी तरह अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी जी भारत के एडिटर संतोष कुमार जी को। कार्यक्रम के इस पड़ाव में जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन लीडरशिप समिट हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसका आगाज़ किया और पूरी तरीके से हमने जिस तरह से यहाँ पर सबका उत्साह देखा है उससे ये साफ झलकता है कि जो हम जो सोच लेकर यहाँ तक आए थे वो उसमें हम सफल हुए हैं। और इस सफल आयोजन के लिए हम पूरे जी मीडिया परिवार में हमारे सभी सहयोगियों, हमारे मार्गदर्शक और जी मीडिया के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, CEO डॉक्टर रक्तिम दास, CRO मनीष सेठ के साथ साथ हमारे सभी एडिटोरियल और सेल्स टीम, साथ में हमारे टेक्निकल टीम्स, कैमरा क्रू, इन सब का बहुत बहुत आभार। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट 2025 की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इस बात की हमें बेहद खुशी है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।